India's foreign minister says if the U.S. does not like India buying Russian oil, it should not buy from India. Mr. Secretary, your thoughts? Look, Maria, this is a very complicated relationship. President Trump and Prime Minister Modi have very good relationships at that level. And it's not just over the Russian oil. The Indians came in very early after Liberation Day to start negotiating on tariffs. न सिर्फ उनके खिलाफ अपमानजनक शब्द का इस्तेमाल किया, बल्कि उन्हें खुलकर गाली दी और इस पर जरा भी अफसोस नहीं करते हुए उन्होंने दोबारा दोहराकर उन्हें गाली दी। एक ऑनलाइन चर्चा के दौरान पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारत पर लगाए गए टैरिफ वेस्ट ने हमेशा से ही एशिया को दबाया है। एशिया के किसी न किसी मुल्क पर चढ़ाई करते नजर आया। वेस्ट में हमेशा से जो है वो पाकिस्तान की अगर बात करें या दूसरे ममालिक की बात करें, देखिए आंखों में आंखें डालने वाला एक वाहिद मुल्क वो इंडिया ही निकला है जिसने अभी तक अमेरिका को आंखें दिखाई कि भाई आप जो मर्जी कर लें, आप टैरिफ लगाएं, आप हम पे पाबंदियां लगाएं, आप हमें कॉल करें, हम हर चीज को रिजेक्ट करते हैं। He says this is 6 months and we've got 4 years of this chutia. And I know I can't live in this country after 4 years. This is the word on which I keep on saying in Urdu, and my many viewers object to it. You know, that why do you use the word chutia? You know, so you. आपको सही स्टैंड किसका लगता है? नरेंद्र मोदी भी ग्लोबली फेमस लीडर है, ट्रम्प भी नो डाउट ग्लोबली फेमस लीडर है। दोनों फेमस लीडर की फाइट में आपको मजबूत कौन दिख रहा है, सही डायरेक्शन में कौन दिख रहा है और विक्ट्री इन द एंड किसकी है? देखिए बात ये, अगर किसी को वो धमकाएं डराएं ना, अगर वो डर जाए ना, वो उसके ऊपर और चढ़ाई शुरू कर देते हैं और जो इनके सामने खड़ा हो जाए फिर ये उससे डरना शुरू होता है। पंजाबी स्टाइल में Joe, is that the Indians are so arrogant about this. They say, oh, we don't have higher tariffs. Oh, it's our sovereignty. तो भैया भारत के ऊपर ट्रंप की तरफ से 50% टैरिफ लगाने के बाद अभी 24 घंटा ही भये हैं और ट्रंप के ट्रेजरी सेक्रेटरी या फिर बोलें कि वित्त मंत्री, साथ में ट्रंप के एडवाइजर हैं पीटर नवारो, उनकी जबान लड़खड़ाने लगी है भारत को लेकर। इनने सोचा था कि भारत से कहेंगे कि 50% टैरिफ तुम्हारे ऊपर लगा रहे हैं, रूस का कच्चा तेल लेना बंद करो, साथ में हमारी शर्तों पर ट्रेड डील भी साइन कर लो। पर भारत तो झुका नहीं। भारत ने साफ बोला है कि लगाना है टैरिफ लगा दो, झुकने वाले तो हम हैं नहीं। ऊपर से ट्रंप लगाते रह गए भारत के पीएम मोदी को फोन और पीएम मोदी ने फोन भी नहीं उठाया। अब रशिया के तेल का मुद्दा तो एक अलग बात है, असली मुद्दा है अमेरिका के अनाज का भारत के अंदर आने का, जिसके ऊपर भारत मान नहीं रहा है, अमेरिका के सामने झुक नहीं रहा है। और अब टैरिफ को लेकर अमेरिका वालों की भी जबान लड़खड़ा रही है, क्योंकि इन्होंने ऐसा सोचा था। India's foreign minister says if the U.S. does not like India buying Russian oil, it should not buy from India. Mr. Secretary, your thoughts? Look, Maria, this is a very complicated relationship. President Trump and Prime Minister Modi have very good relationships at that level. And it's not just over the Russian oil. The Indians came in very early after Liberation Day to start negotiating on tariffs, and we still don't have a deal. I thought that we would have a deal in May, June. I thought India could be one of the earlier deals, and they've kind of tapped us along in terms of the negotiations. And then there is also the aspect of the Russian crude purchases, which they've been profiteering on. So there are many levels going on here. I do think India is the world's largest democracy. The U.S. is the world's largest economy. I think at the end of the day, we will come together. I think a lot of it by the Indians has been performative. But Joe, is that the Indians are so arrogant about this. They say, oh, we don't have higher tariffs. Oh, it's our sovereignty. We can buy oil from anyone we want. India, you're the biggest democracy in the world, okay? Act like one. Side with the democracies. You're getting in bed with the authoritarians. China, you've been at quiet war with them for decades. They invaded Aksai Chin and all your territory. These are not your friends, folks. Okay? And the Russians, I mean, come on. वेस्ट ने हमेशा से ही एशिया को दबाया है। एशिया के किसी न किसी मुल्क पर चढ़ाई करते नजर आया।
वेस्ट में हमेशा से जो है वो पाकिस्तान की अगर बात करें या दूसरे ममालिक की बात करें, देखिए आंखों में आंखें डालने वाला एक वाहिद मुल्क वो इंडिया ही निकला है जिसने अभी तक अमेरिका को आंखें दिखाई कि भाई आप जो मर्जी कर लें, आप टैरिफ लगाएं, आप हम पे पाबंदियां लगाएं, आप हमें कॉल करें, हम हर चीज को रिजेक्ट करते हैं। ये है सबसे बड़ी हिकमत अमली अगर कहा जाए तो जनाब। वेस्ट को अगर आंखें दिखाने में सबसे पहले अगर किसी ने कोई काम किया है वो मुझे इंडिया ही नजर आ रहा है। अगर यहाँ पे आप चाइना की बात करें, डेफिनेटली चाइना और अमेरिका की तो हमेशा से जो है वो एक तकरार नजर आई है, वो एक इकोनॉमी की बात करें या दूसरे ममालिक की बात करें। लेकिन यहाँ पे अगर हम इंडिया की अगर बात करें ना, इंडिया इस टाइम जो है वो अपने आप को बहुत ज्यादा जो है खुद को डेवलप करता नजर आ रहा है। उसने जिस तरह से अगर देखिए अगर अमेरिका उससे नहीं भी कोई चीज परचेज करता तो देखे इंडिया को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इंडिया ने बाकी 40 या दूसरे जो कंट्रीज ममालिक हैं उनके साथ अपने रिलेशंस बेहतर करने की कोशिश की है, उनके साथ अपने ताल्लुकात बेहतर किए हैं ताकि वो अपनी प्रोडक्ट उन तक पहुंचाएगा, उन तक सेल करेगा, उन तक तेल पहुंचाएगा, उन तक दूसरी दुनिया की चीजें पहुंचाएगा और सस्ती और मयारी चीजें मिलेंगी। डेफिनेटली इंडिया को भी फायदा होगा, दूसरे ममालिक को भी फायदा होगा। टेक्सटाइल कह लें कि एक मेजर कंपोनेंट नजर आता है आपकी कंट्री का एंड मेजर एक्सपोर्ट इंडस्ट्री भी नजर आती है। अगर हम अपने टेक्सटाइल की बात करें तो हमारे यहाँ आपने देखा बांग्लादेश शिफ्ट हो चुकी थी वो, लेकिन इंडिया ने ये नहीं कहा कि हम कहीं और शिफ्ट कर देते हैं। हमारे पास अगर कह लें कि अमेरिका को बिगेस्ट एक्सपोर्टर नजर आते थे, लेकिन उन्होंने कहा कि हम इसका रुख चेंज कर देते हैं। जैसे नायरा रिफाइनरी की बात कर लें, उसके ऊपर टैरिफ लगा दिया। नेटो ने कहा कि ये बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी है, बहुत ज्यादा जबरदस्त उन्होंने काम किया है। वो मतलब अमेरिका पे रिलायबल नहीं हुए, मतलब अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हुए। उन्होंने ये नहीं कहा कि हम अमेरिका के जो है वो नीचे लग के उनकी मानेंगे। जैसे हमेशा से पाकिस्तान अपने जितने भी मसाइल होते हैं, जितने भी क्राइसिस होते हैं, वो क्या करता है अपने अमेरिका के सामने रखता है। अमेरिका हम पर जो है वो अपनी मेहरबानी दिखाता है, हमें एड देता है। अभी देखिए जैसे पाकिस्तान के अंदर सैलाब आया है। आपको सही स्टैंड किसका लगता है? नरेंद्र मोदी भी ग्लोबली फेमस लीडर है, ट्रम्प भी नो डाउट ग्लोबली फेमस लीडर है। दोनों फेमस लीडर की फाइट में आपको मजबूत कौन दिख रहा है, सही डायरेक्शन में कौन दिख रहा है और विक्ट्री इन द एंड किसकी है? देखिए बात ये है कि अगर हम ये देखें ना कि सही डायरेक्शन में या पावर किसके पास है तो ऑब्वियसली वो अमेरिका के पास एक सुपर पावर बना हुआ है, ठीक हो गया। दूसरा मोदी में ये मसला आ रहा है कि उसके अपने कंट्री में थोड़ा सा इशू है उसका अपना भी, कि थोड़ा वो रिलीजियसली भी टेक ओवर करता है चीज़ों को, ठीक हो गया। मुस्लिम के अगेंस्ट भी जाता है, तो ये थोड़ा सा भी उसको वहाँ पे भी इकोनॉमिकली थोड़ा सा डिफ़िकल्टी फील हो रही है इस वक्त, ठीक हो गया। बट मैं वही कहूँगा कि मोदी साहब आपको खड़े रहना चाहिए, डट के खड़े रहना चाहिए। फर्स्ट टाइम मैंने देखा है कोई एशिया में कोई एक ऐसा कंट्री जो अमेरिका के अगेंस्ट खड़ा हो रहा है कि अमेरिका कौन होता है हमारे ऊपर सेंक्शन लगाने वाला, ठीक हो गया। तो इसी से अब देखिए इंडिया कोई एक छोटा कंट्री नहीं है, आप गूगल सारा वहाँ से हैंडल कर रहे हैं, ठीक हो गया। आप टाटा एक कार कंपनी मैन्युफैक्चरिंग उनकी एक अच्छी खासी चलने वाली कंपनी, ठीक हो गया। आपका टेस्ला, आपका एप्पल सारा वहाँ पे जनरेट हो रहा है, ठीक है। मैक्सिमम क्या होगा, इंडिया से मूव होगी इंडस्ट्री, चाइना में चली जाएगी। अगेन आपका ट्रेड वॉर है चाइना के साथ, तो फिर चाइना में क्या करेंगे, आप वहाँ से रिमूव करेंगे तो आपका जो बिजनेसमैन है बेसिकली वो कहाँ चला जाएगा। आपको ये थिंक करना चाहिए। तो ट्रम्प एट द एंड विक्ट्री यही मैं कहूँगा आपको कि ये अभी प्रेशर बिल्ड किया जा रहा है सिर्फ ट्रम्प से कुछ बातें मनवाने के लिए, नरेंद्र मोदी से कुछ बातें मनवाने के लिए वो प्रेशर बिल्ड किया जा रहा है, जिसकी वजह से उनको इंटरनेशनली ग्लोबली तौर पे जो है तंग किया जा रहा है, ठीक हो गया। एट दी एंड आप यही देखेंगे नरेंद्र मोदी मान रहे नहीं मानेंगे तो नहीं, एशियन होने के बावजूद मैं तो यही कहूँगा कि हमें स्टैंड लेना चाहिए। अगर गैरत का तकाजा भी यही होता है कि हम दूसरों से भी क्यों लें, ठीक हो गया। माना हमारा कंट्री एक जो उसमें लोन लेते रहते हैं उनसे IMF से, ठीक हो गया। बट इंडिया को चाहिए कि अगर वो स्टैंड लेता है, ठीक हो गया, तो उसकी इकोनॉमी बहुत ऊपर जाएगी। इंडिया तुसी गज वज के खलो जो बिल्कुल अमेरिका के सामने पीछे नहीं हटना, क्योंकि असि पीछे तानु संभाल लांगे है। इनकी देखिए गोरों की ना एक साइकी है, उनकी साइकी ये होती है कि अगर किसी को वो धमकाएं डराएं ना, अगर वो डर जाए ना वो उसके ऊपर और चढ़ाई शुरू कर देते हैं, और जो इनके सामने खड़ा हो जाए फिर ये उससे डरना शुरू होता है। तो भैया ट्रंप के टैरिफ में एक बात सही है कि भारत को $48 बिलियन का एक्सपोर्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है, पर यह बात भी बिल्कुल सच है कि यदि हमने $48 बिलियन का मुंह देखा तो भारत के किसान और डेयरी क्षेत्र के अंतर्गत जितने भी लोग हैं वो बर्बाद हो जाएंगे। कनाडा ने सबसे अच्छा काम किया था, अमेरिका उनके डेयरी सेक्टर को बर्बाद करना चाहता था तो उन्होंने सारे प्रोडक्ट, सारा दूध अमेरिका का फेंक दिया और बोला हमें नहीं चाहिए,
चाहिए, हम अपने लोगों का दूध लेंगे और वहाँ जो उनके पशु हैं कनाडा के अंदर, उनके जो लोग उनके ऊपर काम करते हैं उनकी ही कमाई को वो प्राथमिकता दे रहे हैं और अमेरिका के डेयरी प्रोडक्टों का बायकॉट कर दिया है। भरोसा नहीं है, गूगल के ऊपर सर्च करना, पता चल जाएगा कि कनाडा ने किस प्रकार से अमेरिकन्स को अपने यहाँ पर घुसने नहीं दिया है। और यही ट्रंप चचा चाहते थे भारत के अंदर। उनको ऐसा घमंड है कि मैं एक धमकी किसी को दे दूं तो वो हमारे सामने घुटनों के ऊपर गिर जाएगा, पर भारत के सामने ऐसा हुआ नहीं। पीएम मोदी को 4 बार फोन लगाया, इन्होंने फोन तक नहीं उठाया और ऊपर से जब हमारे ऊपर 50% का टैरिफ लगाया तो हमने यह तक नहीं पूछा कि टैरिफ का असर क्या होगा, इसको कम करो या ज्यादा करो। भारत सिंपली कदम उठा रहा है कि अपने एक्सपोर्ट को दूसरे देशों की तरफ मोड़ रहा है। भैया जब तुम नहीं ले रहे आओ तो हम दूसरे देशों को बेच देंगे, यह भारत की नीति है। तो अब ट्रंप के जितने भी सलाहकार हैं उनकी जबानें लड़खड़ाने लगी हैं। 24 घंटे के अंदर ही उन्होंने जैसा सोचा था कि एक धमकी देंगे, भारत झुक जाएगा, उसके साथ ट्रेड डील कर लेंगे और अपना मुनाफा ही मुनाफा होगा, भारत के किसानों का जो होगा सो होगा, हमारे किसानों का अनाज भारत में बिकेगा और इनकी बल्ले बल्ले हो जाएगी। पर अब ट्रंप के ट्रेजरी सेक्रेटरी बोल रहे हैं कि मोदी और ट्रंप के रिलेशन बहुत अच्छे हैं, हम बहुत बड़ी बड़ी डेमोक्रेसी हैं, जिसके कारण से एक ना एक दिन हम जरूर एक टेबल के ऊपर आ जाएंगे। मतलब जब एक टेबल के ऊपर लाना था तुम्हें तो टैरिफ ही क्यों लगाया? भारत के यहाँ पर भारत के किसानों को बर्बाद क्यों करना चाहते हो? और बहाना रशियन तेल का है या तो झूठा बहाना है। सबसे ज़्यादा तेल तो चाइना लेता है, गैस यूरोप लेता है, तो भारत का इसमें ना तो लेना ना देना है, तो हमें ही क्यों टारगेट कर रहे हो? साथ में चाइना के साथ जो मीटिंग होने वाली है अभी 2-3 दिन में, उसको लेकर भी पीटर नवारो ट्रंप का एडवाइज़र है, वो बोल रहा है कि तुम एक बहुत बड़ी डेमोक्रेसी हो, हमारे साथ अच्छे संबंध हैं, चीन तुम्हारा दुश्मन है, चीन के साथ मित्रता मत करो। मतलब साफ साफ दिखाई दे रहा है कि भारत की जो अगली स्ट्रेटजी है उससे ट्रंप भी खड़बड़ा चुके हैं और उनके एडवाइजर भी अब अनाप शनाप बयान देने लगे हैं। एक बयान में और बोल रहा है ट्रंप का एडवाइजर कि हम तुम्हारे ऊपर टैरिफ हटाए दे रहे हैं क्योंकि तुम रशिया का कच्चा तेल लेना बंद कर दोगे, और यदि रशिया का कच्चा तेल लेना बंद नहीं करोगे तो यह टैरिफ नहीं हटेगा। असल बात यह है कि इनके साथ इनकी शर्तों पर ट्रेड डील कर लो तो ये टैरिफ हटा देंगे, नहीं करोगे तो टैरिफ लगाएंगे, जबकि भारत इनकी बातें मानना नहीं चाहता।